So good afternoon, everyone. So we are starting from the particular BOD point. So we covered the COD aspect in the last lecture. So I've explained you enough about COD. तो एक बार फिर उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट COD को. COD is just an indicator, as a pollution indicator. It's going to measure the organic and inorganic load of the wastewater which you have collected from industry, from our organization. Okay, so merely seeing the COD or BOD, which we are going to cover today, merely seeing these particular values, you can get to know why this water is polluted or not. So whenever a sample comes to your lab, find and you have to find why this water is polluted or not. The first step which you are going to execute is that you want to measure these kind of parameters, which I am discussing with you. And the first was COD, which I have explained to you in the last class, the chemical oxygen demand. So basically the chemical oxygen demand is basically when you have both inorganic and organic loading or pollution load. उसमें organic material भी है और inorganic भी है आपका. So COD is basically not going to differentiate with inorganic and inorganic. So it is going to oxidize, both the materials with the help of potassium dichromate, and accordingly we can measure how much dichromate is reduced with the consumption of oxygen from the solution, and that can we measure using the formula which I explained to you. Now after that, again the parameters are there, the BOD. Okay, BOD. So BOD is a biochemical oxygen demand. है क्या बेटा, इसको पढ़ लो एक बार, फिर मैं उसकी डिटेल समझाने वाला हूं आपको जो आपको एग्जाम में आएगी, तो आप उस चीज से समझ लो बेटा, और कुछ नहीं है. ठीक है जी. BOD is a biochemical oxygen demand, and this BOD is going to measure only organic load. Is going to measure organic load. तो अगर पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको बेटा, जैसे थापर यूनिवर्सिटी का पानी है जो उसके ETB में जाता है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा. क्यों होगा ज्यादा? आपके टॉयलेट से आया है, किचन से आया है, वॉशरूम से आया है, तो जो मैक्सिमम पानी आएगा उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ही होगा बहुत. इसमें इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होगा आपका, जहां पे आपके केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उस केमिकल प्रोसेसेस में यू आर बेसिकली यू कैन से द मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक लोड इज रिलीज इनटू दैट. So basically when talking about your municipality, your local community, organic load is high. So अब इसको कैसे मेजर करना है, अब क्यों मेजर करना है, जिसके लिए मैं फिर बताता हूँ वो चीज, फिर आगे मूव कर जाऊंगा फटाफट बेटा. आपको एक बार फिर सुन लो फटाफट. थापर ने ऑर्गेनिक लोड डिस्चार्ज किया. क्यों? इतनी पॉपुलेशन है, ऐसी कम्युनिटी है आपकी, और हॉस्पिटल्स हैं, तो इतनी पॉपुलेशन है सपोज, तो पानी कंज्यूम हुआ, पोल्यूट हुआ, किचन में आया, टॉयलेट्स में आया, कंज्यूम हुआ, पोल्यूट हुआ, उस पोल्यूशन पे उसमें ऑर्गेनिक लोड ज्यादा हो गया. तो उस ऑर्गेनिक लोड को थापर अपने एसटीपी में ही ट्रीट करेगी. क्यों करेगी? क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक लोड बाहर रिलीज हो गया, फिर उस दिन जब मैं बार बार बताई थी, अगर ऑर्गेनिक लोड बाहर रिलीज हो गया तो जिस रिसीविंग बॉडी में ये पानी जाएगा, तो उस रिसीविंग बॉडी में ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाएगा. तो दिस मीन्स द वाटर, द oxygen present in the water, in the receiving body or rivers, the oxygen present in that which was meant for the life activities is now being consumed up, for degrading the organic matter which you have released. So now it's your prime duty to remove this organic content from the wastewater which you have generated before it is going to release to the atmosphere. ओके, तो कैसे करते हैं बेटा उस चीज के लिए, पहले इसको देख लो एक बार, फिर हम आगे मूव करने वाले हैं. सो BOD is based upon the principle that the sufficient oxygen is available for aerobic biological decomposition, that is stabilization of organic waste. होता क्या है? बायोमाइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब होता क्या है बेटा इसमें, सिंपल सी बात बताता हूं मैं जो करने वाले हैं इस चीज के बारे में. इसमें DO मेजर कर रहे हैं पानी की, ये रहा DO इज डिसॉल्व ऑक्सीजन. अब सिंपल आपको मैं फंडा बता रहा हूं, फिर आगे मूव कर रहा हूं बच्चे, जस्ट लिसन टू दैट पॉइंट वेरी केयरफुली. ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. पानी लेके आया बेटा मैं, सैंपल जो रिलीज हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक लोड हो सकता है. ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक लोड को मेजर करने के लिए कि इसमें ऑर्गेनिक लोड है कि नहीं है, मैं क्या करूंगा, उस वाटर की मैं इनिशियल DO मेजर कर लूंगा, उसको बोलूंगा DO इनिशियल. ओके, सो DO इनिशियल इज a simple distilled water जिसमें मैंने contaminated water नहीं डाला मैंने. I have not added any contaminated water, okay, into that particular sample. So simple distilled water की sample DO ले ली मैंने.
डीओ प्रो मेरे पास है, मैंने उस डीओ प्रो को डिप किया डिस्टिल वाटर के अंदर, तो मेरे पास डीओ इनिशियल आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जो सैंपल मेरे पास एक्चुअली आया थापर का इंडस्ट्री का, मैं उसकी डीओ मेजर करूंगा। कैसे मेजर करूंगा? ध्यान से सुनना बेटा, सब नई वाला चीज। सैंपल लिया मैंने, इंडस्ट्री का सैंपल लिया। अब वो सैंपल में आई हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज ऑर्गेनिक पोल्यूटेड, इज हैविंग ऑर्गेनिक कंटेंट और नॉट। सो उस सैंपल को मैं लेके लैब में लेके आऊंगा। उस सैंपल में मैंने बैक्टीरिया डाल दिया, बैक्टीरिया डाल के उसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद में 5 डेज, अब 5 डेज क्या है, मैं बेटा आपको बताने वाला हूँ कमिंग स्लाइड्स में, थोड़ा ठहर जाओ। 5 डेज के बाद मैं उस सैंपल को उठाऊंगा और उसकी डीओ मेजर करूंगा। अगर उसकी डीओ फाइनल कम हुई, उसकी डीओ फाइनल कम हुई, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 5 दिन उसके बीच में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उन्होंने ऑर्गेनिक कंटेंट को खाना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। तो दिस मींस वो पानी वाली डीओ, उस पानी में जो डीओ थी वो कंज्यूम करनी शुरू कर देंगे टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर, टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना है, एज अ फूड। और खाएंगे तब जब वो रेस्पिरेशन करेंगे, सांस लेंगे। सांस कब लेंगे? जब पानी की डीओ कंज्यूम करेंगे। तो दिस मींस 5 दिन के बाद अगर फाइनल डीओ कम हुई, तो दिस मींस आपकी इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस आ गया। तो इसका मीनिंग है कि 5 दिन बाद जो पानी हमने उठाया है, वो पानी कंटेमिनेटेड था विद ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, अगर डीओ फाइनल और डीओ इनिशियल में कोई खास डिफरेंस नहीं आया, अगर डीओ इनिशियल भी 6 है और ये फाइनल डीओ 5.6 है, दिस मींस खास डिफरेंस नहीं आया। दिस मींस द वाटर व्हिच यू हैव टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री और ईटीपी और एसटीपी फ्रॉम थापर समवेयर एल्स, इट्स कंप्लीटली ट्रीटेड, ऑर्गेनिक मैटर उसमें नहीं है। इज दैट ओके? सो ये चीज है। तो बीओडी, इसके बारे में बताने वाला हूं कि वाई 5-day बीओडी। सो बीओडी टेस्ट इज आल्सो नोन एज बीओडी 5। बीओडी 5 का मीनिंग है कि बीओडी टेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर 5-day कैलकुलेशंस। क्यों? मैं भी टाइम बताने वाला हूं, ग्राफ आने वाला आगे। सिंस इट इज एक्यूरेट मेजर ऑफ डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द 5-day पीरियड। मैंने अभी बताया आपको, यस और नॉट? व्हेन इट इज हेल्ड इन डार्क एंड इंक्यूबेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दो चीजें सुन लो बेटा, हम एग्जाम में क्वेश्चन डालते हैं। व्हाई इट इज रिटन डार्क ओवर हियर? मैं जो बोतल में बीओडी करता हूं वो डार्क में रखता हूं। डार्क किस लिए रखता हूं? क्योंकि सनलाइट में जो सनलाइट होती है, लाइट की प्रेजेंस में आपकी कुछ एक्टिविटीज इनहांस हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की। हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक्टिविटीज परटेन रहे उसकी, कोई उसकी बाहर का कोई फैक्टर उसको अफेक्ट ना करे। सिमिलरली टेम्परेचर, टेम्परेचर में लिखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज वाई बिकॉज मूवमेंट यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो आपकी रेट ऑफ डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा, आपका काइनेटिक्स इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस मींस जो चीज 20 पे की है वो 25 पे की है, जो 27 पे की है, 28 पे की है, दोनों डिफरेंस आ, समय डिफरेंस आ जाएगा बेटे। तो दैट्स व्हाई द सैंपल टेंपरेचर इज फिक्स्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 पे ही हम काम करेंगे। और विद टाइम मैं आपको बताने वाला हूं, सी दिस जो मैंने बताया आपको इसके बारे में, ठीक है? The change in DO concentration over 5 days, DO initial minus DO final, बताने वाला हूं, represents the oxygen demand. That is for what? For respiration by the aerobic biological mechanisms. Yes or not? So this 5-day completion window is inherent and disadvantage. छोड़ो इसके लिए, because wastewater can maybe it can be contain some other things also. Okay. So we have a one term UBOD that is called ultimate BOD and this is called extended BOD. ये क्या है मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये आप ये देख लेना एक मिनट है, जो ये रहा। ये UBOD कंफर्म होगी आपको अभी, अभी ठहर जाओ। तो पहले ये देख लो बेटा, जो मैंने बताया, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसको गो थ्रू कीजिए फटाफट। See this, the BOD is not a measure of any specific pollutant. It's not a measure of any specific pollutant. Similarly, COD is not a measure of any specific pollutant. Basically, BOD is a measure of what? Its amount of oxygen required by microorganisms engaged in stabilizing the organic matter present in the wastewater. Just have an idea on this. BOD is not any specific pollutant नहीं है, इंडिकेटर है एक। जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया मेरे को कि अगर सैंपल आपको पास करना है, अप्रूव करना है, तो उसकी बीओडी 100 होनी चाहिए। जैसे सैंपल आया मेरे पास थापर का, ईटीपी का, कोई और इंडस्ट्री का, सैंपल की वैल्यू हुई 10,000, तो 10,000 और मेरी अप्रूवल लिमिट है 100, तो बाय डिफॉल्ट 10,000 बीओडी का मीनिंग है
कि उस सैंपल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है. There's a huge amount of organic content present in the sample. Why? Because of the BOD. BOD is nothing but, I told you, it's oxygen required by microorganisms. वो microorganisms कब रिक्वायर करेंगे? जब वो खाना खाएंगे. खाना क्या है उनके लिए? ऑर्गेनिक कंटेंट. अब उनको जब खाना मिला ही नहीं, अब उनको खाना मिला ही नहीं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म तो एक दो दिन में मर जाएंगे. अब एक दो दिन में मर गए तो डीओ बटेन रहेगी, डीओ सेम रहेगी पानी की, तो इनिशियल और फाइनल डीओ में डिफरेंस नहीं आएगा. तो दिस मींस आपका पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट कम है, वो पोल्यूटेड कम है, सो दैट सैंपल इज पास्ड. ओके, तो इनडायरेक्ट मेजर है बेटे. एग्जांपल दूं आपको बेटा, वो एग्जांपल दे रहा हूं बार बार आपको मैं. सैंपल आया आपके पास बच्चे, सैंपल आया तो उसमें से बोल रहा है, कोई पूछता आपसे सर ये कंटामिनेटेड नहीं कंटामिनेटेड है, आप देख के कैसे बता दोगे बेटा? क्लियर वाटर है, अच्छा बिल्कुल वाटरी लुक है उसका, बिल्कुल वाटरी लुक है उसका. सो जो वाटरी लुक है यू कांट से. तो फर्स्ट थिंग इज यू गोइंग टू मेजर द डीओ, इनिशियल डीओ देन फाइनल डीओ. उसकी इनिशियल नहीं, ब्लैंक सैंपल की, उसमें डिस्टिल वाटर लेके, और फिर सैंपल की डीओ निकालेंगे 5 दिन के बाद. अगर दोनों की डीओ में डिफरेंस आता है तो बाकी पता चल जाएगा हमें कि द सैंपल व्हिच यू हैव दे हैव गिवन टू अस, although it is transparent, but it may contain some dissolved impurities, no doubt. So dissolved impurities may be in the form of huge organic content. Yes or not? अब एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आगे मूव कर जाऊंगा बेटा. शुगर है ना, शुगर देखी होगी आपने, शुगर पानी में डिसॉल्व कर दो, नोबडी कैन डिफरेंशिएट में शुगर डिसॉल्व हुई है नहीं हुई है. लेकिन पर अब ग्लूकोज उसके अंदर डिसॉल्व हो चुकी है, उसकी वैल्यू चेंज होगी बीओडी की. बच्चे सिंपल वाटर दिख रहा है, शुगर डिसॉल्व करके दिख रहा है आपको, दोनों में डिफरेंस नहीं है. टेस्ट करोगे तो डिफरेंस है. वो आपके सामने रख दिया, मैं बोलूं पोल्यूटेड नहीं पोल्यूटेड है, अब उसमें शुगर डिसॉल्व है, शुगर मींस ग्लूकोज डिसॉल्व है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम. सो अब मैं क्या करूं, इसके बीओडी कर लूंगा. तो बीओडी नो डाउट जो शुगरी वाटर्स की ज्यादा आएगी. क्यों ज्यादा आएगी? बीओडी ज्यादा आएगी. क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट डाल दिया हमने, शुगर. अब ये ऑर्गेनिक कंटेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? दे डू द रेस्पिरेशन फॉर कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक कंटेंट, द शुगर प्रेजेंट इन द वाटर, और उसके ब्याह पे वो पानी की डीओ कंज्यूम करनी शुरू कर देंगे. यस और नॉट? तो जैसे डीओ कंज्यूम होगी, डीओ लेवल कम हो जाएगा, तो 5 दिन के बाद मैं डीओ मेजर कर लूंगा, तो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल में डिफरेंस मेरे को बता देगा कि पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना ज्यादा था. So I've explained you enough. Still you have any doubt, you can raise the queries after the class. I'll try to make 10 minutes window for discussion. Okay. So important factors for this BOD, I told you, temperature, time and light. Yes or not? टेम्परेचर बता रहा हूं, इसके बारे में बताया मैंने आपको. टेम्परेचर वेरी करोगे आप, नो डाउट आपने प्लस 2 में पढ़ा हुआ है. रेट ऑफ रिएक्शन, द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. सो यू कांट से कि 25 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सेम आपका रिजल्ट आएंगे. सो व्हेन यू हैव अ 25, व्हेन यू हैव अ 20 और 28 और 30, मैं बताने वाला हूं उसके बारे में आपको, then you have a different variations because rate decreases, rate increases, and accordingly light I told you, time I told you, and which both the things I want to discuss with you. Okay, so that's why the BOD measurement is always being represented as BOD 5. Okay, forget about BOD 3. अभी बता रहा हूं इसके बारे में, अभी बता रहा हूं इसके बारे में. So BOD 5 is what? BOD test carried out in a BOD incubator at 20 degrees centigrade for 5 days. Okay, so once you do the BOD 3, although this is not being recommended universally, the universal value of BOD which is being recommended is BOD 5. That is, BOD 5 is a test of biochemical oxygen demand carried out at 20 degrees centigrade for 5 days. Moment you increase the temperature to 25 degrees centigrade, your test will be converted to BOD 3. You know how? अब ये एग्जाम में हम क्वेश्चन पूछते हैं. Moment you increase the temperature to 25, from the kinetics you know the rate of metabolic activities of microorganisms increases. Yes or not? अब जो डीओ उन्होंने 5 दिन में कंज्यूम करनी थी, अब वो 3 दिन में कंज्यूम कर जाएंगे. Yes or not? So you know very well the rate of reaction is totally dependent on temperature, and the rate of reaction increases moment you increase the temperature. Yes or not? Depending upon that the temperature which you are going to increase is suitable for the microorganisms. ऐसा नहीं 100 कर दो सब माइक्रो मर गए. So basically when you increase the temperature,
the rate of metabolic activities of microorganisms increases, so they will start consuming the oxygen at faster rate. So whatsoever the oxygen present in the water is being consumed at the faster rate, that is in 3 days. So you can really go for BOD3. So you can go, but generally it's not being recommended. Whenever you have to measure the BOD, you have to mention the BOD. In the official papers, it is always BOD5. हाँ, बाद में मैनिपुलेशन हो जाती हैं, विद एक्सपीरियंस मैनिपुलेशन हो जाती हैं कि BOD5 अगर इतनी है तो BOD3 सॉरी 3 इतनी है तो 5 इतनी हो जाएंगी, यस और नॉट। तो ये विद टाइम एक्सपीरियंस साथ आ जाता है बेटा ये चीज। ओके, डन। सो व्हाई 5-day BOD? तो हमने एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि जनरली वी आर सेइंग दैट 5-day BOD, 5-day BOD, 5-day BOD, व्हाई ओनली 5-day BOD? व्हाई नॉट 6, व्हाई नॉट 4, व्हाई नॉट 8, व्हाई नॉट 7? तो उसका आंसर है आगे, ये सी see this. So this is exponential decay curve. So this is BOD and this is time. See, you can see the two curves, green and red. Okay, so green curve is the first stage BOD and this is second stage BOD. This is first stage BOD, this is second stage BOD. This is first stage is what? First means microorganisms, they will consume all the carbonaceous material. You know carbonaceous material related to carbon related material. So when all the carbon related materials are consumed, microorganisms, they start adapting themselves to the nitrogen compounds. You know, there are nitrogen compounds also in the system, ammonia, ammonium, nitrate, everything is there, yes or not? So once all the carbon material is consumed, microorganisms, they not die, they start adapting themselves to the nitrogen compounds, उनको consume करना शुरू कर देंगे. So, okay, so this is called nitrogenous BOD and this is called carbonaceous BOD, and combined BOD is called ultimate BOD, जो मैंने अभी बताई थी आपको. So ultimate BOD is a combination of carbonaceous BOD and nitrogenous BOD. So carbonaceous BOD is basically when talking about when the microorganisms, they consume only carbon related materials only, and nitrogenous demand is basically when the microorganisms start adapting themselves to the nitrogen related materials in the system. कुछ भी हो सकता है वो, ये देखो अमोनिया हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है आपके वाटर में, वेस्ट वाटर में, डिपेंडिंग ऑन कहां से आ रहा है वो, यस और नॉट. सो इस टोटल प्रोसेस को लगता है 21 डेज, जो उसको बोलते हैं अल्टीमेट BOD. ओके, डाउट है बेटा, बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास के लास्ट में, लेकिन पहले बता दूं 5-day BOD क्यों हमने यूनिवर्सली 5-day BOD क्यों अडॉप्ट की. अब यू सी द ग्राफ, सी द पॉइंट ओवर हियर. अब देखो यहां से जीरो से लेके यहां तक ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन है, यस और नॉट, एंड उसके बाद ये कर्व सीधी होगी यहाँ पे. सो अगर स्ट्रेट लाइन है, आपने किनेटिक्स +2 में पढ़ी है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर, एंड विच इज अ फ्लैट, दिस इज जीरो ऑर्डर, यस और नॉट, पढ़ा हुआ हमने +2 में. when it is a straight line between two axes, it is called first order. That first order means is it is directly proportional to that factor. And if the line becomes flat to any axis, see that axis becomes flat to any axis, it becomes zero order. Zero order means it becomes independent of that particular consideration. Okay, now if you see that 85% of the DO को बोल रहा हूं, it's a BOD basically. मैं चाहे DO बोलूं चाहे BOD बोलूं, सेम है, yes or not? क्यों? BOD is DO initial minus DO final. So I can say BOD or DO. So 80% of the DO or 80% of the BOD is being exerted on the first 5 days, for the first 5 days. So अगर first 5 days में आपकी 5 दिन के अंदर 85% BOD exert हो चुकी है, DO कंज्यूम हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद लाइन जीरो ऑर्डर पे जा रहा है, जीरो ऑर्डर पे जा रहा है. आई नीड नॉट टू वेट फॉर एनी 5 days मोर टू वेट फॉर 2 or 3% रिजल्ट्स. ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लाइन फ्लैट हो रही है यहाँ पे, तो दिस मींस 5 दिन, यहाँ 5 दिन में 85% है और यहाँ 5 दिन में 2 या 3% है. सो आई विल नेग्लेक्ट द पॉइंट ओवर हियर, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट. दैट्स व्हाई द BOD इज ऑलवेज टेकन एज 5-day BOD. फिर रिपीट कर रहा हूं, 5-day BOD is taken because 85% of DO or BOD or DO
is consumed in first 5 days of the test. Okay, so this is the overall picture why we have this thing. Okay, so I have explained you this better. You can go through this. Okay, but I am going to explain this in 1 or 2 minutes. Just listen. ये ऊपर वाला बता चुका हूँ बेटा, ये रहने देना बेटा, ये सैंपल टाइट्रेट करते हैं ना, ये हमारा है टाइट्रेशन वाला मेथड है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे ना, आपको हम पूछेंगे अभी आपको। अब तो हमारे पास सीधा हमारे पास डीओ प्रोब आ चुकी है लैब के अंदर, डीओ प्रोब्स, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रोब। सो मैं क्या करता हूँ, ये बीओडी बोतल है। अब ध्यान से देखना है, ये बीओडी बोतल इंडिया में रहो, पूरे यूरोप में जाओ या बाहर किसी कंट्री में चले जाओ, बीओडी का वॉल्यूम सेम रहेगा, वो है 300 ml। यूनिवर्सली थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां बीओडी होती है, बीओडी बोतल वहां मिलेगी आपको, और बीओडी बोतल का वॉल्यूम होगा 300 ml। ओके, इज दैट ओके? तो इसमें सीधी ऊपर प्रोब लग जाएगी आपकी। प्रोब कौन सी प्रोब लग जाएगी? डीओ प्रोब। तो जैसे डीओ प्रोब लगी तो मेरे को यहां तक डीओ की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटे। ओके, इज दैट ओके एवरीबॉडी? ओके, सो नाउ सेस, तो मैं ये टाइट्रेशन पे नहीं जाऊंगा, यू कैन स्किप दैट, सिंपली मैं डीओ ले लूंगा और मेरी बीओडी आएगी डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ऐसा नॉट, ये डी अभी छोड़ दो, अभी बताने वाला हूं आपको डीओ, डी क्या है। सो बीओडी इज नथिंग बट डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, यस और नॉट? डीओ इनिशियल किसका है? ब्लैंक सैंपल का, लिखा है देखो, ये देखो, डीओ इनिशियल इज द इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द सैंपल बॉटल एंड डीओ फाइनल इज द फाइनल डीओ इन द सैंपल बॉटल। ठीक है, सो डीओ इनिशियल इज व्हाट, इनिशियल डीओ कितनी है और फाइनल डीओ कितनी है बच्चे। ओके, तो दिस मींस फर्स्ट डे और 5 डे क्या डिफरेंस है बेटा, बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, कितना डीओ, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या है बेटे? अब डाइल्यूशन फैक्टर का फंडा सुनो बेटा, अंडरस्टैंड करो इस चीज के बारे में। समटाइम्स व्हेन यू गेट अ सैंपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, it is highly polluted and suppose its BOD is 1 lakh. When the BOD is 1 lakh and your BOD experiment which you are doing in the lab, they are not in the range, the BOD bottle cannot measure that kind of thing. So what you want to do, you're going to dilute it. ठीक है, तो डायल्यूट करके उसको रेंज को लेके आओगे। तो दिस मींस अगर आपका कोई इंडस्ट्री सैंपल बहुत ही पोल्यूटेड है, उसकी बीओडी 1 लाख के करीब है और आपकी जो लैब की रेंज है निकालने की वो 10,000 है वो 10,000 है, तो क्या करोगे आप? जो सैंपल लेके आए हो आप, देन यू वांट टू डायल्यूट द सैंपल। सो सैंपल कैसे डायल्यूट करना है? कुछ नहीं करना, आपको पता ही है, यू हैव टू टेक अ सैंपल, 5 ml सैंपल, बाकी पानी डाल दो, डायल्यूट हो गया। Or this is how the dilution factor is being calculated. Dilution factor is equal to VB by VS. VB is the sample bottle volume and VS is the sample volume. Okay, so sample volume कुछ भी लिया, sample bottle का volume हमेशा 300 रहेगा। अगर एग्जाम में नहीं भी देते आपको, then you have to take this particular bottle volume to be 300 ml, which is universally accepted. Is that okay everybody? See, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको कैसे डायल्यूशन होती है, फिर आगे मूव कर जाएंगे बेटा। सी दिस, यू हैव अ फुल स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर, अब इसकी हमने बीओडी निकालनी है, तो बीओडी निकालने से पहले वांट टू डायल्यूट इट। हाउ गोइंग टू डायल्यूट इट? सी दिस, 1 ml you take from the full strength waste water and put over here. In this water you have distilled water. You have a 9 ml of distilled water, yes or not? 9 ml distilled water, 1 ml ये डाल दिया, तो आपका 110 डायल्यूट हो गया, 110 डायल्यूट हो गया बच्चे। सो 110 इज डायल्यूटेड, तो दिस मींस अब डायल्यूशन फैक्टर आ गया 10 आ गया आपका। अब यही इससे अगर 1 ml डाल के इसमें डाल दोगे, जिसमें ऑलरेडी आपका 9 ml डिस्टिल वाटर पड़ा हुआ है, तो इसका 1 ml डाल दिया, तो डायल्यूटेड का डायल्यूशन में डाल दिया, तो ये 1/100 हो गया। इसका उठा के डालोगे 1/1000 हो गया, इसका डालोगे 1/10,000 हो गया, यस और नॉट? एंड दिस इज द वे वेयर यू कैन डू द डायल्यूशंस, एंड ये प्रेफर की जाती है बेटा जब हम काम करते हैं। ओके, and this is kinetics of BOD. You can please note it down because इसी बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इसी बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं बेटे। ओके, so this is a BOD at a particular time t and this is ultimate BOD. You know what is ultimate BOD? मैंने अभी दिखाया था आपको ultimate BOD क्या था। This is ultimate BOD, इसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। ओके, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, into 1 raised to power e minus kt. ठीक है, k is a BOD rate constant, t is a time in days. Okay, और ये आया कैसे बेटा? you know engineers, you have done the +2, you know very well. This is a first order kinetics. First order kinetic is
rate of BOD per unit time is directly proportional to POD at particular time. Okay, then dBOD by dt is equal to kBOD. kBOD, yes or not? And K is what? BOD, constant at a particular temperature in day inverse. Okay, so when you rearrange the variables, dBOD by BOD is equal to K dt, and you K dt integrate it, yes or not? Once you do integration, you will get ln over here, yes or not? Ln BOD by this is equal to KT, and ln when goes to this side, it becomes e raised to power KT, yes or not? So this is how this expression is being evaluated. और आया कहां से बेटा? ये आया यहां से, जब मैंने इसको फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स यहां पे माना इसको. That is, first order kinetics means the rate of BOD exertion, the rate of BOD exerted is directly proportional to the BOD. BOD means DO, एक ही बात है बेटा, चाहे DO लिख लूं चाहे BOD एक ही बात है, इसको मैं DB हटा देता हूं, तो बात वही है, because BOD is nothing but DO minus initial minus final, yes or not? So this is how this expression is being calculated. You remember this expression because on the basis of this you get the numericals. तो ये मैं बता चुका हूं आपको, आगे मूव कर रहा हूं फटाफट. COD values are always higher beta. Why? You know very well, because I told you COD includes both degradable and non-biodegradable substances, where the BOD contains only biodegradable. Why? Because BOD में सब काम किसने करना है? Microorganisms ने. So microorganisms, they will consume only which compound? Biodegradable compounds. They will not consume non-biodegradable compounds. Huh? Whereas the COD, it is like both biodegradable and non-biodegradable. Why? Because in COD we are going to use a potassium dichromate, which is very powerful oxidant. It's not going to differentiate between the organic and inorganic. It's going to oxidize both. Is that okay, everybody? अब सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, फटाफट इसको देख लो बेटा. अब अगला पैरामीटर है आपका सॉलिड्स. ओके, अब सॉलिड्स क्या है बेटा? जो मैंने उस दिन आपको क्लास में बार बार बताया था कि जो हम आरओ की बात करते हैं, आपके घर में आरओ लगे हुए हैं सबके बेटा, हॉस्टल में आरओ लगे हुए हैं, तो आरओ का पर्पस है लगाना आपके पानी के टीडीएस को कंट्रोल करना. टीडीएस क्या था? टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स. टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स. लेकिन अल्टीमेटली जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, वो तीन तरह के होते हैं बेटा, अभी बताने वाला हूं इसके बारे में. टोटल सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स प्लस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो आपका जो पानी है, जो आपका पानी है, इंडस्ट्री से आएगा, एसटीपी से आएगा, कहीं से भी आएगा, उसमें तीन चीजें होंगी बेटा. ओके, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स. टोटल सस्पेंडेड और डिसॉल्व को प्लस करेंगे, देन यू विल गेट total solids. And this is very important aspect, very important calculations when you design something related to wastewater and when you design something related to your water treatment system or drinking water system. Because drinking water में हमेशा आप बात करोगे total dissolved solids की. ये यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ आपको. ओके, और दूसरी बात बेटा आपको आगे मूव करने से बता दूं कि अटेंडेंस के मामले में थोड़ा पर्टिकुलर रहना. रोज आपकी अटेंडेंस आपके यहाँ मेरे यहाँ पे आ रही है ऑनलाइन, ठीक है, और मैं क्लास में ले चुका हूँ. इसकी शॉर्ट होगी, बता देना बेटा. अभी क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं, आई थिंक सो, या तो टेस्ट आने गए हैं ट्रैवलिंग में, पर उनको बोल दो बेटा अटेंडेंस शॉर्ट होगी, ये सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा उनको बेटा. ओके, नाउ सी दिस टोटल सॉलिड्स, मैं बता रहा हूं इसके बारे में. अब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लो, ठीक है. ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, गूगल क्लासरूम में बनाऊंगा, वीकेंड में बनाऊंगा गूगल क्लासरूम में, शेयर विद यू. मोर ओवर मैं बता चूंगा बच्चों को कि एलएमएस पे ऑलरेडी ये इसकी वीडियो शेयर्ड हैं, रिकॉर्डेड वीडियो शेयर्स हैं, और जो मेरी क्लासरूम वाली है बच्चे, मैं आपसे शेयर कर लूंगा. ओके, नाउ लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू. अब टोटल सॉलिड कैसे निकालने हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है बेटे, पर उसको मैं एलेबोरेट वे से बता रहा हूं. अब उसको बार बार सुन लेना जब आप बाद में वीडियो मेरा देखोगे, या अभी सुन लो. बेटा मैं क्या करूंगा, एक बीकर लूंगा, 100 ml, कुछ भी ले लो, 100 ml का बीकर ले लिया, मैंने ले लिया. उस बीकर को मैं ड्राई कर लूंगा. उस बीकर को मैंने ड्राई कर लिया, उस बीकर को मैं ड्राई किया, ड्राई करके उसका मैंने वेट ले लिया ओवन में, सॉरी वही ड्राई करके वे ले लिया. सपोज उसका वे आ गया x1 वे आ गया, ड्राई बीकर का वेट आ गया x1. ओके, अब वो बीकर को मैंने लिया, उसमें सैंपल डाल दिया. कौन सैंपल? जो आपके पास टेस्ट होने के लिए आया हुआ है, इंडस्ट्री का, एसटीपी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का.
जैसे उसके बीच में सैंपल डाला, लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डाल के रख दिया। अब उसको लिक्विड डाल के उस बीकर के अंदर मैंने उसको रख दिया ओवन के अंदर। ओवन का टेम्परेचर 103 टू 105 और इसको मैंने फुल 1 डे के लिए रख दिया। और एक दिन के बाद यू नो ऑल द वाटर विल बी इवेपोरेटेड, जितना उसके बीच पानी को सब इवेपोरेट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? सॉलिड्स बच जाएंगे सॉलिड्स। तो मैं जैसे बीकर को उठाया एक दिन के बाद, मैंने वेइंग बैलेंस पे ले गया, उसके जाके वे कर लिया, तो वे आया उसका x2। x2 माइनस x1 क्या आएगा? टोटल सॉलिड्स। x1 क्या है? बीकर का वेट। x2 क्या है? बीकर प्लस सॉलिड्स का वेट। तो x2 माइनस x1 करूंगा, बीकर निकल गया, तो क्या आ गया? दिस इज टोटल सॉलिड्स। तो ये पैरामीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू डिजाइन इन इंडस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल सॉलिड निकालने के आगे अगले पॉइंट भी बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ इस सॉलिड्स में जो नीचे रह गए हैं वेपोरेट होने के बाद, कुछ वोलेटाइल होंगे, कुछ फिक्स होंगे, यस और नॉट? जो सॉलिड्स ग्लास के नीचे, बीकर के नीचे रह गए हैं बच्चे आफ्टर इवेपोरेटिंग ऑल द वाटर, आर सम ऑफ द वोलेटाइल, सम ऑफ द फिक्स। हाउ टू कैलकुलेट? उसी बीकर को उठाओ and then expose it to 500 degree centigrade. And when you expose it to 500 degree centigrade temperature, at 500 degree centigrade temperature, whatsoever the volatile compounds are there, solids are there in the system, they will be volatilized. And जो नीचे बच गए वो फिक्स हैं। कैसे निकालोगे? अगेन यू हैव x2 वेट है उसका, इसका इवेपोरेट करके फिर वेट ले लो, x3 आ गया। ओके, x3 आ गया ना? तो x3 वेट जो आएगा वो आ जाएगा वेट आपका माइनस करके आ जाएगा जो फिक्स्ड है, और जो माइनस करके आएगा, दोनों को माइनस करके x3 और 2 को माइनस करके आएगा, वो आएगा वेट। किसका वेट आएगा? वो जो वोलेटाइज हो गए। बस सिंपल तो बात है बेटा। इज दैट ओके एवरीबॉडी? डाउट है बाद में पूछ लेना बेटा आप सब, ठीक है? सो नेक्स्ट पैरामीटर इज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है जी। तो दिस मींस आप अपने FRD और M वाले ने देखा होगा बेटा, वो जो बच्चे बताते थे कि आपको पानी कंटेमिनेटेड आता है, यस और नॉट? कुछ टाइम के लिए पहले तो क्या किया आपने, जैसे टैप वाटर ऑन किया तो पानी आपने देखा बड़ा गंदा पानी आ रहा था, बिकॉज द वाटर वाज हैविंग अ सस्पेंडेड सॉलिड। सपोज ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट द सस्पेंडेड सॉलिड्स? कैसे कैलकुलेट करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ विद टाइम। सुनो, फिर वही बात, एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, फिर मेरी वीडियो सुन लेनी अगर कोई डाउट रहता है आपको बाद में। ओके, टेक द बीकर बेटा, आपने बीकर लिया छोटा सा 100 ml का बीकर लिया, और उसके बीच में आपने रखी एक फनल। फनल के अंदर रखा आपने फिल्टर पेपर। यू मस्ट हैव सीन द फिल्टर पेपर, यस नॉट? साइज रिकमेंडेड है यहाँ पे, यही ले लो आप, या 20 माइक्रोन का ले लो। सो यू हैव टेकन अ फिल्टर पेपर। अब ध्यान से सुना बेटा ये चीज। फिल्टर पेपर को यहाँ रखने से पहले फिल्टर पेपर को ड्राई कर लो, ड्राई करके उसका वेट ले लो। सपोज उसका वेट आ गया x1। क्या किया? फिल्टर पेपर लिया आपने जो भी रिकमेंडेड है इस टेस्ट के लिए, देन यू टेक द फिल्टर पेपर टू द ओवन, ड्राई इट, टेक इट टू ओवन एंड ड्राई इट एंड टेक इट टू वेइंग बैलेंस एंड देन टेक अ वेट, इट्स वेट इज x1। ओके, नाउ अब x1 वेट आ गया फिल्टर पेपर का, सिंपल फिल्टर पेपर का। अब करना क्या आपने? उसी बीकर के अंदर फनल रखी आपने, फनल पे आपने वो जो भी ड्राई किया हो आपका फिल्टर पेपर है, वी हैव प्लेस इट। नाउ स्टार्ट प्योरिंग द वेस्ट वाटर इन इट। तो जैसे वेस्ट वाटर इसके बीच में पोर करना शुरू कर दोगे, तो उस वेस्ट वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, दैट विल बी रिटेन्ड बाय योर फिल्टर पेपर, यस और नॉट? जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो पानी में सस्पेंडेड है, रिटेन्ड बाय फिल्टर पेपर। So after passing all the wastewater into the filter paper, now what you want to do? After some time, take the filter paper out. Take the filter paper out. Dry it. Dry it and the weight. And suppose the weight is x2. x2 minus x1 will be your total suspended solids. ओके, आई थिंक सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी क्लियर नहीं है बच्चे, मेरी वीडियो एक बार फिर सुन लेना कि कैसे हमने निकाला है चीज के बारे में। ओके, देन द लास्ट पार्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड इट्स द पैरामीटर ऑन व्हिच योर RO being installed. The reverse osmosis in your hostels or in household are being installed, that is basis of TDS. और TDS की सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी बच्चे? पानी में शुगर डिसॉल्व कर दो, दिखती नहीं है, क्लियर वाटर है,
लेकिन उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स आ गए हैं, कौन से? शुगर की फॉर्म में। अब निकालना कैसे है? बड़ा सिंपल है बच्चे, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से देखना बेटा आपने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, अगला उसी में थोड़ा रिपीट हो जाएगा, बाकी वीडियो में सुन लेना आप। टेक अ बीकर, dry it. Once you dry it, take its weight. Weight is x1. Okay. Take a beaker, dry it, and take a weight, and the weighing bell is x1. Now, what I want to do? Take a funnel, put a filter paper, same method, filter paper, and start pouring the wastewater over here. Now, this filter paper is going to retain the suspended solids, but allows the passage of dissolved solids. Yes or not? Dissolved solids funnel के भी पास, filter paper के थ्रू पास कर जाएंगे बच्चे। मैंने आपको एग्जांपल फिर दे रहा हूं, आपको चाय पीते हो बच्चे, ओके? How much water, beta? Beta, water is not, it's not quantity, not fixed. It depends upon a parameter. No, not parameter. It depends upon standards. Normally, you take 100 or 250 ml. जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कीप द वॉल्यूम सेम, 100 और 250 ml और 250, जो भी आप रखना है, एक सेम रखना है उस चीज के लिए आपको। ओके, आइदर 100 ml और 250 ml। लैब के लिए इतना ही बहुत है पैरामीटर देखने के लिए। ओके, हाँ, पर सबसे बड़ी बात है जो सैंपल आप इंडस्ट्री में लेके आए हो, वो सैंपल सही होना चाहिए। जो मैंने आपको सैंपल लेना सिखाया था, ग्रैब सैंपल लेना है। ग्रैब सैंपल क्या होता है? जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। दिस मींस अगर मैं 100 ml की वैल्यू निकाल रहा हूं, उसका मीन वो पूरे सैंपल की वैल्यू है। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर चाय वाली एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप चाय बनाते हो, चाय में आप गोइंग टू डिसॉल्व शुगर इन दैट, ओके? तो शुगर डिसॉल्व कर दी अगर आपने उसमें चाय में, तो उस चाय को फिल्टर कर लो आप, फनल के या फिल्टर पे फिल्टर कर लो। तो फिल्टर के बाद जो चाय आएगी वो भी मीठी आएगी। क्यों? क्योंकि द शुगर इज डिसॉल्व्ड। यस और नॉट? तो अब वही पंगा यहाँ पे है। बीकर लिया, ड्राई किया, वे लिया, x1 funnel, you have placed it, try in the funnel you put a filter paper, start pouring a wastewater, 100 ml suppose. When you pour the wastewater in this, the suspended solids are retained by the filter paper, which I explained here. Yes or not? Dissolved solids are passed over here in the beaker. So when all the water has been passed, take the beaker out, और separate the beaker from the funnel and the filter paper, और इसको लेके हम यहाँ पे, इसमें जो पानी है उसमें dissolved solids है। Now take the beaker into the oven at 103 and 105 degree centigrade. Evaporate all the water in a single day, and after 1 day take the beaker out, weigh it, and its weight is x2. Now x2 minus x1 will be your total dissolved solids. I think so you might have understood better. Okay, and now please listen to my video again and again if you have any doubt, and otherwise you can always tell me. I can repeat in the next class somewhat, but I've explained you in detail बेटा how these parameters are being evaluated. Okay. तो अगला बार ये चीज मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, अपने आप कर लो। क्यों? अब क्या है वो चीज जो मैंने अभी रिपीट की थी पहले, ऊपर देखो ये देखो। अब जो हमारे सस्पेंडेड सॉल्ट और डिसॉल्व सॉल्ट आए हैं उसमें भी कुछ वोलेटाइल और फिक्स होंगे, जो मैंने ऊपर करवाए थे ये वाले, इसमें टोटल वाले करवाए थे ना, टोटल में कुछ वोलेटाइल और कुछ फिक्स है। कैसे किया? 500 पे बर्न करके। सेम is applicable to suspended also and dissolved also. So you have volatile suspended solids, you have fixed suspended solids. Similarly जो dissolved हो गए बीकर में आ गए हैं, it's a total volatile dissolved solids and fixed dissolved solids exposed to 500. Then again we do the difference will give you volatile and fixed. Same you can execute with the dissolved solids. Okay, is that okay everybody? So ये इस तरह हम इसको मेजर करते हैं बेटा। Then these are the few other parameters which you can go through बेटे very fast, ठीक है? See this turbidity, मैंने आपको बता चुका बेटा अभी। turbidity क्या होता है बेटा? It's a light transmitting properties of water. अब सिंपल बात जो आपको बच्चों को बता रहा हूँ, एमोस्टल और एफआरडी वालों ने बताया था कि उनके जो टैब में वाटर आ रहा था, टर्बिड वाटर आ रहा था। कैसे पता चला टर्बिड वाटर? हम ऐसे देखते हैं ऊपर थ्रू विंडो कि लाइट पास नहीं कर रही इसके बीच में, यस नॉट? और वही प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं यहाँ पे। It's a measurement. This measurement is based upon the comparison of the intensity of light scattered by the sample with that of a standard solution. Standard क्या होता है? कोई फॉर्मर्स सॉल्यूशन ले लिया जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाटरी लुक है। अब सिंपल वाटरी लुक होगी तो क्या होगा? जैसे उसमें लाइट पास करेंगे तो लाइट उसमें पास हो जाएगी, यस और नॉट? नो,
If the water is turbid, some impurity is present, what is going to happen? जैसे जैसे light pass करूंगा उसके बीच में, the light is being scattered. When the light is being scattered, I want to measure the intensity of scattered light using a method called nepheliometry. Okay, understand this. Okay, पढ़ लेना इसको एक बार. Then color, बेटा ये पैरामीटर जो फिजिकल पैरामीटर वांट टू मेजर कलर क्या होता है कि हम वांट टू मेजर द कलर कितना कलर उसके बीच में. ओके, और इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गोइंग टू यूज द गोइंग टू यूज दैट टू मेजर द कलर. नॉर्मली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द कलर, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एंड टेम्परेचर, आई हैव टोल्ड यू एस नॉट to temperature is very important as is going to affect the chemical and the biochemical reactions and rate of these reactions. I told you. Okay, you can go through. And the last but not least in the physical this parameters is electrical conductivity. Electrical conductivity is nothing but it's going to measure the ionic concentration of this water. आयन ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, आयन कम होंगे. कौन से आयन बेटा? अब पानी में क्लोराइड होंगे, सल्फेट होंगे, नाइट्रेट्स होंगे, नाइट्राइड्स होंगे, अमोनियम होंगे, अलग अलग होंगे, ऐसा नॉट. So basically, why we are measuring? Because this is something very important property, ionic strength. Okay, so it's a measure of ability of solution to conduct electric current. Simple. अगर आयन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर आयन कम है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होगी. So indirectly we can measure from TDS from also. Somewhere in the literature it is mentioned that indirectly you can measure the electric conductivity from the TDS. TDS अभी बताया था, total dissolved solids, अगर आपको याद है ये रहा. तो total dissolved solids is equal to electric conductivity into 0.55 into 0.55 to 0.70 depending on कौन solution आप handle कर रहे हो. So it's an indirect way also, so you can go through. Okay, so I'll take 1 or 2 minutes more. So after discussing aggregate organics, करिए डिस्कस ना aggregate organics, वो क्या डिस्कस किए थे? TOC, COD and BOD, that we have discussed. And after discussing a physical, अभी की हैं कलर, turbidity, this one, temperature, electric conductivity, this parameter we have discussed in the physical. Now we'll move to the chemical parameters. Okay. So I think so 4 minutes are left, 2:40. I have to make it close, so I stop here.